So this theory of Mahatma Gandhi that you should have the only that amount of anything, either it be grain or facilities or water, food, you there are limited, right? So everything is finite in this world, whether it is air, water, land, forest, if whether it is anything, it is finite in this world, and that should be distributed uniquely to everyone. I hope I am audible. Am I audible? And are you able to see the web, PPTs? Yes, ma'am. Okay. So Yes, ma'am. every okay, okay, thank you. So everything in this world is finite. That is air, water, land, soil, and forest. Everything is which is explained here, which is available here, is which is given by nature is finite, and that should be equally shared by everyone, right? So the first fundamental law of sustainability. I think ये वीडियो डिस्टर्ब कर रहा है क्या बेटा? ये जो साइड में लिखा हुआ देख पा रहे हैं, वीडियो डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? No, ma'am. Okay. So, the first fundamental law of sustainability is that an ecosystem of finite resources, there can be only finite consumption. मतलब जिस ecosystem में finite resources है, वहाँ consumption भी finite होना चाहिए. But as I was discussed in last session of the first part of this Energy Swaraj PPT, that was we are using 1.7 Earth more, राइट? अर्थ आवर की हमने बात की थी। तो हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो 1 अर्थ के हैं, लेकिन हम जो यूटिलाइज कर रहे हैं वो 1.7 अर्थ का करते जा रहे हैं, डे बाय डे वो टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ता चला जा रहा है। जिसका मतलब क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज फाइनाइट है, लेकिन हम उसका जो कंजम्पशन है वो इनफाइनाइट या उसके बियॉन्ड कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, या एक ये बहुत अच्छा पार्ट था इसका। उन्होंने ये पूछा कि अभी जैसे लॉकडाउन हुआ, राइट? तो लोगों ने बोला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसको बहुत गिरावट आई। क्यों गिरावट आई? क्योंकि देखो इसमें लिखा भी हुआ है, पॉलिसी इंटरवेंशंस आर देयर टू रिवाइव द सेक्टर एंड इकोनॉमी एट लार्ज स्केल आर नेसेसरी टू सेव ऑफ द प्रोटेक्ट दिस क्राइसिस। व्हाट क्राइसिस? Because the auto industries, the manufacturing of car got temporary, they need to halt it, because in lockdown nobody purchased the new car in 2, 3, 4 months. Nobody, or the selling of cars were very less, so the manufacturing is also very less. So he raised Professor Chetan Singh Solanki raised the question that this is a scene of an auto industry which is showing the how much manufactured car has been kept here as dump, right? So he was asking us in the session that to have this much amount of car is a crisis, or to not using this much amount of cars is a crisis. कार को जब आप यूज करते हैं तो उतना ही हम फॉसिल फ्यूल भी यूज करते हैं, उतना ही हम एयर को पोल्यूट भी करते हैं। तो क्राइसिस एक्चुअल में है क्या? क्राइसिस क्या है? ये इतनी सारी कार्स है, राउट नहीं होना या होना? आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट कि ये क्राइसिस क्या है? बात समझ में आ रही है? सच में क्राइसिस है कि नहीं? हैविंग अ कार नॉट सोल्ड और हैविंग अ कार सोल्ड, व्हिच इज द क्राइसिस? So this is the thing. I hope you are understanding what I am trying to say. The more car, the more people using the car. I mean, car कितनी होती है? 4 सीटर, है ना? But this is really sad कि हम 4 सीटर को यूज करते हैं एक सिंगल पर्सन के लिए। And I am also the culprit. I think I am the culprit because I am using a car by in which I came alone sometimes, most of the times, and sometimes while driving back to home, I give lift to one or two to my colleagues who are not coming from buses nowadays. But before lockdown, that situation was not there. Buses were available, and I was coming, and many of the faculties are coming by their own cars, and carpooling could be done. But we are seeing our comfort level, we are seeing our facilities, felicitation, and so many things are there. We cannot believe in pooling the car because it is suggested by environmentalists a decade ago. So this is a question, right? That and some few many of the family members have 2, 3, 4, 5 vehicles, for one vehicle per person in a family. This is also happening. This is
car parking, thanks to the builder who have made the covered campuses. Otherwise, how people could kept 4-5 cars or 4-5 vehicles in their homes, because land crisis is also there. So this is the question. And second main thing he has raised, that the mania for mass. You can see this highlight part. I just try to highlight this. The mania for mass production is responsible for the world crisis. When the production and consumption both becomes localized, the temptation to speed up production indefinitely and at any price disappears. All the endless difficulties and problems that our present day economic system presents too would then come to an end. वो कह रहे हैं कि जो मास प्रोडक्शन का जो बहुत ज़्यादा एक दिमाग में बना हुआ है कंपनीज के, जैसे कंपनीज ने इतना सारा कार प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके पटक दी उसके डंप यार्ड में, ठीक है, उनके यार्ड में पड़ी हुई है इतनी सारी कार। क्यों? क्योंकि मास प्रोडक्शन हो रहा है। हम उस हिसाब से नहीं करते कि लोकल कंजम्पशन और लोकली प्रोडक्शन हो। गाँव में क्या होता था पहले, अगर आप अभी भी अगर जाते हो या बचपन में कभी नाना नानी के यहाँ दादा दादी के यहाँ गाँव अगर आप लोग जाते हो, तो वहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम चलता था। कैसे? जैसे आइसक्रीम वाला आया, उसने आइसक्रीम दिया, तो बदले में क्या देते थे? जो अनाज घर में उगाते थे, गेहूं दे दिया, ठीक है। वो मकई की धानी वाला आता था, पॉपकॉर्न वाला, उसने पॉपकॉर्न दिया, हमने उसको क्या दे दिया? गेहूं दे दिया। पहले हर चीज ऐसे ही होती थी। किसी के यहाँ चावल होता था तो चावल के बदले में गेहूं एक्सचेंज कर लेते थे। दूध था तो उसको घी, मतलब दूध तो खैर जितना गाँव में प्रोडक्शन करते सबके घरों में पहले पशुधन हुआ करता था, एनिमल्स हुआ करते थे, गाय भैंस होती थी, अभी भी होती है बट अभी धीरे धीरे कम होती चली जाती। तो उनको मार्केट से ही प्रोड्यूस करना नहीं खरीदना नहीं पड़ता है। गांव में आज भी नहीं खरीदना पड़ता है। वो गांव में अपना इतना सफिशिएंट रखते हैं कि उतने दूध से, है ना, उतना पूरा जनरेट हो जाता है उनका कंजम्पशन लोकलाइज। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मास प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीजें, मास प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्री चाहिए। इंडस्ट्री चाहिए तो क्या होता है एक इसको थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखिए, है ना। इसको हम इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोच पा रहे, पर वो जब वो आईआईटी के प्रोफेसर ने इस पॉइंट को उठाया तो मैंने भी इसको बहुत ध्यान से सुना कि हाँ ये बात तो है। हम लोग का सपना रहता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे काम करना, या हम भी ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बड़ी इंडस्ट्रीज पे जाए, एमएनसीज पे जाए, बहुत अच्छा काम करे, पर वहाँ हो क्या रहा है? मास प्रोडक्शन, मोस्ट ऑफ द कंपनी। तो ये मास प्रोडक्शन जो है वही तो वर्ल्ड क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? हर एक व्यक्ति अपना पार्ट नहीं कर रहा है। उसके पास पैसा है, उससे वो हर चीज खरीदना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? दिल्ली में जिसके पास अभी प्योर एयर जो है उस पर तो सबका हक है ना। लेकिन वहाँ दिल्ली में इतना पोल्यूशन है क्योंकि सबके पास कार है। और वो मैंने आपको इस सीन में दिखाया था कि दिल्ली के पोल्यूशन का और पूरा ट्रैफिक का। तो सबके पास कार है, सबके पास पैसा है, सबके पास कार है। अब जिसके पास कार नहीं है, जिसके पास कम पैसा, उसको तो शुद्ध हवा नहीं मिल रही ना। जिसके पास खूब पैसा है उसने तो अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगवा के रखा हुआ है, लेकिन तो भी वो बाहर जाएगा तो क्या करेगा? मास्क लगा के जाएगा। तो ये जो मास्क है ना, अभी चल गई ये मास्क, पहले अगर आपने देखा होगा तो पिछले 5 साल से दिल्ली के लोग लगा रहे, मोर और लेस। दिल्ली के लोगों को देखना आप, पोल्यूशन लेवल जब बढ़ जाता था तो वो मास्क लगाते थे, मास्क यूज करते थे। ये जो मास प्रोडक्शन है इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। गंगा किनारे इतनी सारी फैक्ट्रीज लगी, गंगा नदी के किनारे, नदियों के किनारे पूरा पोल्यूशन, पूरा वेस्ट सब नदी किनारे लगा। हम क्या करते हैं? हम कभी भी अपने फैसिलिटीज को अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं करते, है ना। हम उसको अपने शौक के हिसाब से करते हैं। हमको जो जरूरत रहती है उससे भी ज्यादा, जैसे कितने जोड़ी कपड़ों की जरूरत होती होगी हमको? डेली में 2 जोड़ी, एक जोड़ी पहनो, दूसरा जोड़ी सुखाओ। लेकिन हम सबके पास डेली के कपड़े बहुत ज्यादा है। फिर बाहर पहनने वाले कपड़े कितने होने चाहिए? ओकेजनली अगर आप हफ्ते में 5 दिन 6 दिन बाहर जा रहे हैं, 6 दिन के 6 अलग जोड़ी कपड़े। क्या हमारे पास अब 6 जोड़ी कपड़े हैं? नहीं, हमारे पास तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब हमने उसको क्या कर लिया? हमने उसको बहुत कैटेगराइज कर लिया। कॉलेज पहन के जाने वाले अलग, ऑफिस वाले अलग, किसी रिलेटिव के यहाँ जाएंगे वहाँ के अलग, पार्टी के अलग, घर में पहनने वाले अलग, इस ओकेजन के कैजुअल पिकनिक पे जा रहे हैं वहाँ के अलग, रिसेप्शन में जाएंगे शादी के वहाँ अलग, बर्थडे पार्टी में जाएंगे वहाँ अलग, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाएंगे वहाँ अलग। वी हैव सॉर्ट ऑफ कैटेगराइज दैट। इसकी जरूरत थी क्या इतने ज्यादा की? नहीं, बट ट्रेंड इज लाइक दैट ओनली। और हमने बिना सोचे समझे अंधानुकरण करते हैं ना हम। आई होप आप लोग सब सुन रहे हैं। आप लोग भी अगर अपने व्यूज देना चाहें ना तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही जनरल टाइप का डिस्कशन है। ये अच्छा, मुझे अच्छा लगता है ये डिस्कशन स्टूडेंट्स के साथ भी करना।
तो आप लोग भी अपने व्यू दे सकते हैं। आई मे बी रॉन्ग, बट आप ये वाला अपना व्यू दे सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये सही है या गलत है? कोई तो दो अपने व्यू बेटा, पार्टिसिपेट करो, हम लोग एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। हो सकता है आपको मेरी बात नहीं पसंद आ रही होगी, तो भी यू कैन पार्टिसिपेट, यू कैन बट सी दैट मैडम यू आर नॉट सेइंग इट रॉन्ग, और यू कैन शेयर योर यस मैम। व्यूज। हाँ बोलो बेटा। मैम जितनी जरूरत नहीं होती फिर भी, मतलब शौक जैसे आपने बताया कि जितने कपड़ों की जरूरत नहीं होती फिर भी उतना यूज करते हैं, और ये तो अभी हाँ, ट्रेंड ही बन गया कि सभी लोग ऐसा करेंगे। है ना, बिल्कुल ट्रेंड बन गया। और ये ट्रेंड हाँ कैसे बना, देखा देखी से। और ये मालूम है कब से हाँ ज्यादा ट्रेंड आया, जब से स्मार्टफोन्स आए। हाँ मैम। नो और मैम नो। जैसे अगर सिर्फ हम अपना भी काम अच्छे से करें, सिर्फ अपनी मतलब बाकी लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिर्फ अपनी भी ले, जैसे कि हम पॉलीथीन लेके जाए ये वो, तो वो सबको शर्म भी आती है अभी। मतलब जैसे अभी देखती हूँ मैं मार्केट में, तो वो वहां से लेना प्रेफर करेंगे, पर घर से लेके जाना और जैसे आपने बताया तो वो कोई भी नहीं करेगा। तो सब लोग अपना अपना बस मतलब कंप्लीट करे हिस्सा, तो भी काफी बेटर होगा। बट ये क्यों है बताए बेटा, ये टेंडेंसी क्यों आई? हम्म, ये टेंडेंसी जब से आई, तब से जब से दिखावा बढ़ गया है, तब से टेंडेंसी बहुत आ गई है हाँ ना। जैसे मुझे अभी भी याद है, मैं छोटी थी तो दादी क्या करती थी, दादाजी के जो पुराने पैंट्स रहते थे, वो दादाजी के पुराने पैंट्स के हाँ लेग काट के दादी झोला बनाती थी, है ना। और सब्जी उसी हाँ। में आती थी, फल भी उसी में आता था, ठीक है ना। अब बैग्स की इतनी वैरायटी हो गई, स्कूल का बैग अलग, कॉलेज का अलग, लैपटॉप का अलग, मार्केट जाना है तो उसका अलग, शॉपिंग यस का मैम। अलग, है ना, बहुत सारा इस टाइप का। मैम सब लोग समझ ही नहीं पाते कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या है उसमें। मतलब वो चीजों में ढूंढते रहते हैं कि नए नए ड्रेसेस पहनेंगे तो मतलब अच्छा फील बिल्कुल, होगा या फिर अच्छा लगेगा, पर ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। यस राइट। ये बात आपने बेटा बहुत अच्छी बोली बात, कि हमको ऐसा लगता है कि ये हाँ। हम ऐसा कर लेंगे, दूसरे देख लेंगे तो हमारा इंप्रेशन पड़ेगा तो हम खुश हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। और मैम हैप्पीनेस। इवन तो ये होता है कि जितना दिखावे की कोशिश करते हैं तो उतना ही अनहैप्पी होते हैं, और तो और 17 लोग मिलते हैं फिर ये वो, तो और ज्यादा माइंड डिस्टर्ब होता है। जैसे मतलब आप, पीस कभी मिल ही नहीं पाएगी माइंड को। राइट, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ड्रेस पहन के गए, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आप पहन के गए, कॉलेज में किसी ने बोल दिया अरे ये क्या पहन लिया, कितना बेकार कलर है, ये कैसा पुराना डिजाइन, आपका मूड हम्म। वहीं ऑफ हो गया, तो आपका हैप्पीनेस तो गया। क्योंकि हमने क्या रखा हुआ हाँ। है, हमारी हैप्पीनेस की हमने दूसरों के हाथ में देके रखी है, हमारी खुशियों की यस चाबी मैम। दूसरों पर डिपेंडेंट हो गई, जबकि वो होना क्या चाहिए, वो हमारी है ना। वो तो वो एक्चुअली यस इनसाइड मैम। आउट होता है हैप्पीनेस, आउटसाइड इन नहीं होता है। लेकिन देखो, जब से ये स्मार्टफोन का और ये सोशल मीडिया का ये जो कल्चर चला ना, इससे कोई अछूता नहीं है, मैं भी अछूती नहीं हूँ, बट ये कहीं ना कहीं ये चीज मैटर करती है ना। और ये चीजें तब से बहुत चलन आ गया जब से कैमराज आए। कौन से वाले कैमराज, स्पेशली ये जो डिजिटल कैमराज आए ना, जिसपे आप डिजिटली अपनी वर्चुअली फोटो, ये सब वर्चुअल है। ये जितना जितना हम यस देख रहे मैम। हैं, दिस इज ऑल वर्चुअल। इसका किसी से कोई लेना देना नहीं। आप आपके फेसबुक में, मेरे फेसबुक में 2000 से 3000 स्टूडेंट्स या लोग या पर्सन जुड़े हो, और उसमें से 2000 3000 में से 200 300 भी नहीं है जिनको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। बट हम अगर मान लो कोई, मैं फॉर एग्जाम्पल कोई मैंने एक फोटो डाली या मेरा कोई अचीवमेंट डाला, तो कितने लोगों ने उसमें लाइक किया, वो दिल से लाइक कर रहे हैं, है ना। कई लोगों ने पढ़ा भी नहीं, बट वो एक मेंटालिटी बन जाती है कि ये साइकोलॉजी है ना, कि अच्छा हमने कोई स्टेटस डाला तो कितने लोगों ने देखा, कोई स्टेटस डाल रहा है तो हम देख रहे हाँ हैं। इट मेक नो सेंस एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल हाँ, किसी ने और कोई वही खुशी ढूंढने मोटिवेशनल, लगते हैं फिर। राइट, कि अरे इतने लोगों ने लाइक किया। ये इसको भी जो वही। रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट जो इस एरिया में काम कर रहे हैं ना, इसमें भी इन लोगों ने किसी को, किसी मेनिया वेनिया को नाम दिया हुआ है। अपने यहाँ तो घर में इंडिया में ये इतना अच्छा रहता है कि मम्मी पापा ने कान मरोड़ा तो सब राइट पे आ जाते हैं, है ना। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। फॉरेन कंट्रीज में लोग जो इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना अलग अलग चीजों से, और वहां तो ये होता है कि बस आपने ग्रेजुएशन अपना स्कूल कंप्लीट किया तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आपके माँ बाप आपको टोक नहीं सकते, घर में बच्चों की पिटाई नहीं लगा सकते। तो ये सब चीजें बहुत गलत है। और ये सब वहां से जो हम लोग अडॉप्ट करके उसको सोचते हैं ना कि हमारा ये हाई क्लास स्टेटस है और ये है, ये सब बहुत 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 ही गड़बड़ चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है आज के जमाने में अगर कोई, मतलब देखो, भगवान ने, ईश्वर ने अगर हमको कोई बॉडी दी है, शरीर दिया है, तो उसको हेल्दी रखना, उसको अच्छा रखना, उसको साफ रखना, ये बिल्कुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अच्छा दिखना, अच्छा रहना, ये बिल्कुल जरूरी है ना। क्योंकि भगवान की हम कृति हैं यस तो मैम। ऑब्वियसली सुंदर ही होंगे, ईश्वर की कृति तो सुंदर ही होती है। उसको अच्छे से रखना, साफ रखना, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल आपको मैं ऐसा नहीं बोल रही कि गंदे तरीके से रहना चाहिए, आपको बिल्कुल वेल ड्रेस्ड रहना चाहिए, कपड़े भी आपको बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन पहनने चाहिए, प्रेस करके पहनने चाहिए, ऑब्वियसली उससे आपकी पर्सनालिटी डिफाइन होती है, नो डाउट।
लेकिन हमको ये करना चाहिए क्योंकि एक ये सोशल कल्चर है या सोशल एटिकेट्स है, ये शो ऑफ के लिए नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कोई कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन करंट की सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, है ना बेटा? बॉयज आप लोग भी पार्टिसिपेट कर, आप सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेटा, है ना? आप लोग के कोई व्यूज है तो आई मे बी रॉन्ग, आपको लग रहा होगा मैडम बहुत पुराने ऑर्थोडॉक्स टाइप बात कर रही है, बट ऐसा नहीं। जैसे हम लोग यूजुअली रोल मॉडल्स किसको मानते हैं? ये जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, इनको हमने नाम क्या दे दिया? हीरो और हीरोइन, है ना? लेकिन ये एक्चुअल में हीरो हीरोइन नहीं है, वो एक एक्टर है और एक एक्ट्रेसेस है। लेकिन हम कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, अनुष्का शर्मा ने ऐसा हेयर स्टाइल रखा है तो सलमान खान ने ऐसी हेयर स्टाइल रखी है, तो कोई सा नया हीरो आया कार्तिक आर्यन, उसने ऐसे जैकेट पहने थे, किसी ने वैसे शूज पहने थे, रणबीर ने, तो हमको वैसे शूज लेने। हम क्यों इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? और मैम इसी बीच में वो रियल लाइफ हीरोज और हीरोइन को तो मतलब पहचानने ही भूल जाते हैं, हम तो भूल ही गए कि जो हाँ रियल में ये, एक्चुअल में सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी सोनू सूद तो देखो, उसको उनको देख के लगता है कि हाँ यस ही हैज डन समथिंग विच कुड बी सेड एज लाइक हेरोइज्म का कुछ काम किया, इतने लोगों की हेल्प करना, दिन रात लगे रहना, तो ये हेरोइक काम होता है। ऐसा नहीं कि ठीक है और उनके पास। अच्छा मुझे देखो एक चीज मुझे और बहुत ज्यादा जो खराब लगती है वो ये कि एक हमारा जो यूथ भी है, और यूथ का भी कहेंगे या जो मेच्योर लोग भी हैं, वो बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं इन सब चीज़ों से, बहुत ज़्यादा। ऐसा हेयर स्टाइल रखना है, ऐसे ड्रेसेस लेने हैं, ऐसा ट्रेंड चल रहा है, ऐसा फैशन, यू शुड बी अपडेटेड। इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर आज स्मार्टफोन है, मेरे पास नोकिया 3315 आज रहेगा तो मैं स्मार्टफोन के हॉटस्पॉट को ऑन करके ये क्लास नहीं ले पाऊंगी। लैपटॉप भी मेरे लिए जरूरी है क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस, टेक्नोलॉजी अपडेटेड रहना गलत नहीं है, बट उसका मैं क्या यूज कर रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या यूज करें ये बहुत है, आप अच्छे से रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप इसलिए मत रहिए, अपने रोल मॉडल अपने मम्मी पापा को बनाइए, हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं। आप अपने टीचर्स को बना सकते हैं, स्कूल के टीचर्स को जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने मिला। आप अपने बड़े भाई बहन को भी बना सकते हैं जो रियल लाइफ में वाकई में ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, जिससे आपको बहुत सीखने मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है आजकल के ज़माने में जो नेगेटिविटी से या वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं होता ना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉकडाउन में मैंने बहुत सुना ये कि अरे हम तो घबरा गए, है ना? आई एम सो सॉरी अगर आप लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो, आप लोगों को भी, कई लोगों को लगता होगा, बोरिंग हो जाता है कि हम घर में ही रह रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा पा रहे। तो टू बी एट होम इज अ ब्लेस और टू नॉट बी एट अ होम इज अ ब्लेस, है ना? दिस पॉइंट शुड बी नोटेड कि आज हम लोग इतना, जैसे लॉकडाउन 18 मई से शुरू हुआ, हर टीचर घर से बाहर जा रहा है और हमको मालूम है कि हैजार्डस है, इट इज वेरी डेंजरस, इट इज रिस्की फॉर आवर फैमिली टू, but we are bound to come here. That is our duty. Online classes are there, so many documentation work is there. This is the thing. So many people are working hard, doctors are working hard. You can imagine how much they are missing their homes, how much their families are missing them, right? Ward boys हैं, nurses हैं, doctors हैं, ये लोग कितना मिस कर रहे हैं अपनी families को, है ना? तो वो घर में रहना कितना मिस कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए घर में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। अरे बाहर ही नहीं है बहुत दिन से, तो घर में जो है वही खुशियां ढूंढो, कोई घर का अपना कोना सजा लो, रूम को डेकोरेट कर लो, गार्डनिंग का शौक है वो कर लो। आपको बहुत सारी ऐसी शिकायतें होंगी, टाइम नहीं रहता तो हम पेंटिंग नहीं कर पाते, पुराना सिंगिंग का या पुराना म्यूजिक का शौक नहीं कर पाते, रनिंग का नहीं कर पाते, जो जो इस टाइम पे जो स्केचिंग का, आपके जो शौक हैं, जो हॉबीज हैं, उनको एक एक घंटा टाइम दो। अभी आपको देखो नेचर ने ये टाइम दिया है कि आप अपने फैमिली को समझें, अपने रिलेशंस को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करें, है ना? अर्थ के साथ, नेचर के साथ थोड़ा टाइम बिताएं। तो यू शुड यूटिलाइज लाइक दैट ओनली। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा उसमें ये प्रॉब्लम जरूर आ जाती है कि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो लैपटॉप से और फोन से आपको कनेक्ट रहना पड़ता है, बट यू ट्राई टू फाइंड आउट द रियल पीस, है ना? और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा हर काम ऐसा होना चाहिए जो हमारे सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए हो। तो अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा भी करेंगे ना, तो आपके मन में एक रह जाता है, यार ये आपको भी नहीं अच्छा लगता, आपने उसको डांट दिया ना, भले उसकी गलती है, किसी भी 1 2 3 किसी भी पर्सन को आपने डांट दिया तो आप अशांत हो जाते हो मन में। क्यों? क्योंकि बेसिक नेचर जो इंसान का है ना, वो भगवान ने हमको बना के ऐसा भेजा है कि हम दूसरों की हेल्प करने के लिए बने हैं। दूसरों को खुशियां देंगे तो हमको बाय डिफॉल्ट खुशियां मिलेंगी, दूसरे को दुख देंगे तो बाय डिफॉल्ट हमको दुख मिलेगा। और इंसान का जो जो बेसिक नेचर है ना, वो होता है टू टू बी इन पीस, to become mentally peaceful, to become mentally calm.
बच्चों को देखा, जब बिल्कुल छोटे बच्चे रहते हैं 1-2 साल के, वो हंसते ही रहते हैं। वो या तो रोते हैं या हंसते हैं। रोना उनकी जरूरतों के लिए रहता है, खाना पीना, भूख लगी, चोट लगी, डर गए, तो उसके लिए रोना रहता है। बाकी टाइम वो पूरे टाइम हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, किसी की बुराई नहीं, किसी की भलाई नहीं, वो अपने में ही मस्त रहते हैं। वैसा भगवान ने हमको बना के भेजा था एक्चुअली, हमेशा अपने में मस्त रहने वाला, अच्छे अच्छे काम करने वाला। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाते हैं कई बार, है ना। तो ये मास प्रोडक्शन वाली जो बात है ना, कंपनीज तो इसमें से बहुत सारा फायदा उठा रही हैं। बट वो गांव वाली जो बात कर रहे थे कि सब अपना अपना काम करते थे, सब एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। कोई बांस की टोकरी बनाता था, कोई मटके बनाता था, वो मटके वाला मटके दे जाता था, गेहूं दे जाता था, है ना। कुम्हार बांस की टोकरी मैम बनाता था, थोड़े टाइम उससे। पहले तक हम्म, बोलो बोलो बेटा। मैम थोड़े टाइम पहले तक वो विनिमायक प्रणाली चलती थी, जिसमें कि जैसे अनाज है, गेहूं है और किसी के घर चावल है, तो ट्रांसफर कर लिया, हम मैंने बिल्कुल उसको गेहूं दे दिया, उसने चावल दे दिया, इस टाइप बिल्कुल। से। तो वो मार्केट जाने का भी मतलब ऐसा चलता नहीं था कि हाँ, मार्केट जाएंगे तभी काम होगा। ये जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है ना बेटा, ये इसीलिए हो रही है। अभी तुम मॉल जाओ, चाइना के प्रोडक्ट, जापान के प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट, कितने सारे प्रोडक्ट हैं, आपको लगेगा अच्छा ये तो लाइफ को हमारी कितनी इजी बना देंगे। लेकिन वो आपकी लाइफ को कितना कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे ना, हम ये कभी हम देख नहीं पाते हैं, है ना। ये भी बहुत चीज जी ऐसी है जो हम नजरअंदाज कर, तो अपना अपना व्यू हमको, ये देखो हमको बचपन से जो पढ़ाया गया ना, हमने बाबर अकबर पढ़ा, है ना, और ये बीरबल पढ़ा, औरंगजेब पढ़ा, ये सब पढ़े, डायनेस्टीज, है ना, सारा हिस्ट्री पढ़ा, सिविलाइजेशन पढ़ा। हमको एक कई बार सोचना चाहिए कि भारत को सोने की चिड़िया जो कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है। पहले ऐसे ही होता था, किसान खूब मेहनत करता था, जिसका जो काम था ना वो मन लगा के करता था। अभी कैसा हो गया, हमको ऐसा काम चाहिए जिसमें कम मेहनत करनी पड़े, एसी ऑफिस मिल जाए, कोडिंग करनी पड़े, फिजिकल वर्क नहीं करना पड़े। ऐसी मेंटालिटी हमारी बन गई, लेकिन हम ऐसे थे नहीं, है ना। जितने भी ह्यूमन बींग और इंडिया के लोग स्पेशली, सारा ब्रेन, जो हमारा दिमाग था वो बहुत तेज था, ठीक है, हमारी फिजिकल फिटनेस थी वो बहुत अच्छी थी, हमारा जो खान पान था वो बहुत अच्छा था, हमारे जो मसाले थे, जो हमारा दिनचर्या का रूटीन था वो बहुत अच्छा था, ठीक है ना। इसलिए तो हम टॉप पे थे। अब फिर वही समय आ रहा है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम चेंजिंग वाला समय, वापस फिर से वो समय आएगा तो इंडिया फिर से नंबर 1 हो जाएगा। धीरे धीरे उस पर चल रहा है काम, बढ़ रहे हैं अपन उस पर। लेकिन वही वाली बात है कि अगर प्रेजेंट डे इकोनॉमिक को, अगर आपको सिस्टम को बेटर बनाना है, ये स्लाइड आज खत्म नहीं होगी, अभी 5 मिनट बचा हुआ है क्लास के, ये स्लाइड अपन नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे इसको। तो ये जो सिस्टम है ना, ये इकोनॉमिक सिस्टम बेटर कब बनेगा, जब भाई आप वो वाली पद्धति, लोकल प्रोडक्शन एंड लोकल कंजम्पशन, इसमें लिखा हुआ देखिए, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बोथ बिकम लोकलाइज, देन ओनली द इकोनॉमिक प्रेजेंट डे इकोनॉमिक सिस्टम विल गेट बेटर। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट वी नीड टू कंसिडर। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि क्यों क्यों जरूरी है आप सब लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, क्यों जरूरी है आप सब लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में किसी कोर कंपनी में ही जॉब करनी, कुछ अपना एंटरप्रेन्योर बन के भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये आप ये सोचिए, आजकल गवर्नमेंट स्टार्टअप पे और नए एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर बहुत इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही है। तो अपना एक देखो, बहुत सारी ऐसी होममेड ऑटोमेटेड मशीन रहती है जिससे अपन छोटी छोटी इसकी चीजें बना सकते हैं। आप वो DIA, डू इट योर ओन वाले बहुत सारे फेसबुक पे वीडियोस आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, मोस्टली चाइनीज और जापानीज आते हैं, छोटी छोटी चीजें रहती हैं डेली यूसेज वाली। तो वो हम भी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो फैसिलिटेशन के लिए हम बना सकते हैं अपना दिमाग यूज करके। कल मैं पढ़ रही थी, कल का दैनिक भास्कर किसी ने पढ़ा क्या, वेडनेसडे वाला? उसमें जो परिवार सेक्शन, पत्रिका, मेरे घर पत्रिका आता है, तो पत्रिका वाले पेपर में एक सेक्शन आया था। मणिपुर में एक लेडी है, वो नाम मुझे याद नहीं है, मणिपुर की एक लेडी है, वो क्या कर रही है, जो कमल नाल जो होता है ना, लोटस लोटस प्लांट का जो डंडी रहती है, उससे फाइबर बना रही है, ठीक है। उस फाइबर से वो स्टोल्स बना रही है, नेक टाई बना रही है, और आपकी जो शर्ट की टाइज है वो बना रही है, थोड़े थोड़े से हैंकर चीज छोटे छोटे से बना रही है, और उसको अच्छे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। अभी ये देखो कितना यूनिक आइडिया है उनके वहां पे। अच्छा, और वो क्या कर रही है, उन्होंने वहां पे लोटस का प्लांटेशन का भी काम चालू कर दिया, ठीक है ना। लोटस वहाँ के का लोकल तालाब वाला जो है, वहाँ कमल की खेती करना भी शुरू कर दिया, पूरा स्टडी किया। ये वियतनाम में और जो इंडोनेशिया है, इसके आसपास के कंट्रीज में कहीं था ये। तो शी कंसेप्ट कंसीव दिस आइडिया फ्रॉम दैट यूट्यूब चैनल, और उसके दिमाग में आया कि हम भी तो ये कर सकते हैं।
तो उसने फिर अपने आसपास की 10 लेडीज को, गांव की, मेघालय के किसी गांव की है, तो उन्हें आसपास 10 लेडीज को कलेक्ट किया और उन्होंने फिर 1 आध साल मेहनत की और थोड़ा होमवर्क किया, थोड़ा रिसर्च वर्क किया, थोड़ा उनको एक स्टेट का जो एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड था वो भी मिला, तो 1,10,000 उनको मिला उसमें, जो प्राइस बनी था उसमें, तो उन्होंने वो भी उसमें लगा दिया। तो अब सोचो कि ये कितना इनोवेटिव चीज है कि नेचर से बना रहे हैं आप। आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, अगर आप कोई टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते हैं तो कपड़ा बनाते हैं ना मिल से, सिंथेटिक फाइबर जो बनाते हैं उसमें बहुत अमाउंट लगता है ना, तो पोल्यूशन भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा लगती है, देन पानी बहुत लगता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, केमिकल यूज होता है। बट ये जो उन्होंने बनाया आपके लोटस फाइबर से, वो लोटस फाइबर बहुत, वो तो यूजर फ्रेंडली है, वो तो नेचर फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल भी है, तो वो चीज़ तो बहुत ही अच्छी है। और उसमें कितने सारे लोग हैं, और 10 लेडीज को, उनके गांव की 10 लेडीज को एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, और वो जो खुद लेडी है वो खुद एंटरप्रेन्योर भी बन गई। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं। हाँ, लेकिन इसमें डेफिनेटली कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप करना हो तो उसमें हार्डवर्क तो लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा दिमाग लगता है, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है बेसिकली। तो ऐसे ये बहुत सारे आइडियाज हैं जो आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि अरे अच्छा, और उसका उनका फोटो भी आया था बड़ा, जैसे गांधी चरखा होता है ना, गांधी चरखे पे बढ़िया वो बुन रहे थे वो लोग, ऐसे 4-5 लेडीज की फोटो आई थी। तो ये बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज हैं जो हम भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज के लिए सब लोगों को दें। तो यही यही है बेटा, आत्मनिर्भर भारत का जो ये एग्जाम्पल है ना, वो यही है। ऐसा बहुत सारी चीजें आप भी कर सकते हैं, डिपेंड्स आपका कैसा इंटरेस्ट है, बट फिर भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए हम कर सकते हैं ये चीजें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आप समझ में आ रही है ना। अब हम प्रोसेस फूड मॉल में जाके खरीदने से अच्छा है हम घर पे उसको, जैसे आम को पहले प्रिजर्व करना होता तो आम का मुरब्बा बना लेते थे, शक्कर डाल के अचार बना लेते, दूध से बढ़िया जो खाते। अभी अभी वो मॉल कल्चर आ गया, प्रोसेस्ड क्रैनबेरीज और प्रोसेस कीवीज। और अभी अगर आपने देखा होगा कोविड सिचुएशन उन्होंने ये बोला, और ये जितने भी पेशेंट्स हैं उनको भी ये बोला जाता है, आपके एरिया के जो मौसमी फल हैं वो खाइए, वो हमारी बॉडी को ज्यादा सूट करते हैं और बहुत ज्यादा हेल्पफुल करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। आपके एरिया के जो हैं, हमारे एरिया में क्या नहीं होता, कीवी, लेकिन कीवी खाना क्या है हमारे लिए, स्टेटस सिंबल है ना। 20 रुपए का एक कीवी लेके खाते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत हाई स्टैंडर्ड है। बिल्कुल नहीं, वो कीवी आपको उतना हेल्प भी नहीं पहुंचाएगा, तो किसी और कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है भाई, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। तो ये भगवान ने, नेचर ने ये सिस्टम बना के रखा है कि हमारे यहाँ आम ज्यादा होगा तो आम खाइए, आपको उससे फायदा होगा। आपके यहाँ अमरूद होता है, अमरूद खाइए, आपको उससे फायदा होगा। आपके यहाँ बेर होता है, बेर खाइए, क्योंकि ये सीजनल है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये नेचर ने सारी व्यवस्था बनाई हुई है ना। हम उसको थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं और हम वो प्रिजर्व और वो केमिकल डला हुआ, पेस्टिसाइड डला हुआ मॉल का जो फ्रूट लाते हैं, हम उसमें बड़ा प्राउड फील करते हैं, अरे ये वहां से ग्रीन एप्पल, फूजी एप्पल खा रहे हैं हम लोग, सीधी से आया है, तो ये बड़ा हमारा स्टेटस सिंबल बन गया। तो इट इज नॉट लाइक दैट, यू शुड चेंज योर पर्सपेक्टिव।